Hello everyone. Today we will discuss a very important topic, that is software testing. So as you know, in our previous lectures we have discussed different phases of software development life cycle. Like when we want to develop a software, then we are having a very first step, that is first we gather the requirement, right? And after gathering the requirement, we prepare a document that is known as SRS. On the basis of that document SRS, we can prepare the second document that is known as SDD, software design document, right? That contain the entire design of that particular software. In this document, we may create the DFDs, we can create sequence diagram, we can create class diagram, we can create a structure chart. On the basis of this design, then we can start the implementation that is known as coding, right? And in this particular coding, we have discussed that what can be the different strategies to code, what can be the best practices to code. And now we are having the next topic, that is software testing. So it is also a very important activity. As we know, testing is the process of executing a program with the intent of finding errors, right? So the objective is how we can find the errors, right? Because there may be different types of error present in the code. So although software testing is itself is an expensive activity, yet launching of software without testing may lead to cost potentially much higher than that of testing, especially in system where human safety is involved. So it is very important that before launch of any software, we must properly test, we must properly identify the bugs or errors that may present in the software. In the software life cycle, the earlier the errors are discovered and removed, the lower the cost of their removal. ठीक है, जितना जल्दी हम एरर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जितना जल्दी हमें पता लग जाएगा कि क्या उसमें एरर है, उतना ही हमारे लिए और हमारे कस्टमर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा. We can broadly classify all the testing techniques into two categories. First one is functional or black box testing, and second one is structural or white box testing, right? What is the difference between these two techniques? In functional testing, testing is based on functionality of the program. Means we are having a source code, we are having a program. Simply we will give the set of inputs, and if we are getting the right output on the basis of set of inputs, then we can say that the functionality is correct, the code will also be correct. So it is based on observations of the output for certain inputs, right? What is the internal code? What is the language we have used? What algorithm they are doing? Doesn't matter. The focus is just on checking the functionality. अगर functionality हमारी सही है तो हम कह सकते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर का कोड internally अपने आप ठीक होगा, right? Second method, we are having structural testing, that is known as white box testing. So in structural testing, it permits us to examine the internal structure of the program. Here we can analyze the internal structure. Here we are having a method that is known as path testing. In path testing, we try to identify what are the different branches, and then we try to identify the errors. Today, first we will discuss the functional testing methods. We are having different methods that come under the category of functional testing or black box or behavioral testing. The very first method is known as boundary value analysis method, right? Suppose we are having a variable x and y. Suppose we are having these two variables x and y. The range for variable x varies from a to b and for y c to d. ठीक है, एक रियल एग्जांपल अगर लें, सपोज वी आर हैविंग वेरिएबल x, द x may varies from 1 to 1000, राइट? सपोज करो अगर हमें इस पर्टिकुलर वेरिएबल x को टेस्ट करना है, द रेंज वेरीज फ्रॉम 1 to 1000. आइडियली तो ये होना चाहिए कि हम वेरिएबल x को पहले वेरिएबल वैल्यू 1 पे टेस्ट करें, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे.
एंड वी टेस्ट दिस सॉफ्टवेयर ऑन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल वैल्यू। इस तरीके से हम ऑल 1000 वैल्यूज पे इस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करके देखें, ठीक है। बट इट इज नॉट फीजिबल, ये फीजिबल नहीं है कि हम हर 1000 वैल्यू पे उस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करें, क्योंकि सपोज करो अगर एक्स की रेंज 1 लाख है, 10 लाख है, 1 करोड़ है, तो क्या हम 1 करोड़ वैल्यू पे इस वेरिएबल को टेस्ट करके देखेंगे, ठीक है। तो दैट इज नॉट फीजिबल। इसलिए हमने एक मेथड निकाला दैट इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड, जिसमें हमने ये एनालिसिस करके देखा कि जनरली जो एरर होती है सॉफ्टवेयर में वो बाउंड्रीज पे होती है, ठीक है। अगर हम अपने सॉफ्टवेयर को बाउंड्रीज पे टेस्ट कर लें और बाउंड्रीज पे आउटपुट अगर ठीक आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर ठीक होगा, ठीक है। तो इसी मेथड से, इसी लॉजिक से हमने निकाला एक मेथड दैट इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड। अब इसमें हमने क्या कहा कि सपोज वी आर हैविंग द रेंज फ्रॉम 1 to 1000, तो 1 क्या हो गया उसका लोअर बाउंड, ठीक है, और 1000 क्या हो गया अपर बाउंड। तो हम टेस्ट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को किस किस वैल्यू पे। सबसे पहले तो लोअर बाउंड, लोअर बाउंड कितना हो गया आपका 1, देन लोअर बाउंड +1 यानी कि 2, ठीक है। फिर किसी एक मिड वैल्यू पे, सपोज हमने इसको टेस्ट कर लिया 500 पे, देन अपर बाउंड यानी सबसे ऊपर की जो वैल्यू है दैट इज 1000, ठीक है, और अपर बाउंड -1, अपर बाउंड -1 यानी कि 999। तो अगर हम अपने वेरिएबल x को इन 5 वैल्यू पे टेस्ट कर लें और इन 5 वैल्यू पे अगर हमें ठीक आउटपुट मिलता है, तो हम एक मोटा माटी ये कह सकते हैं कि यस, द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। तो इसी लॉजिक के साथ हमने ये मेथड बनाया था दैट इज नोन एज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड। So let us understand with the help of example how we can solve the problem with the help of this method. So let's consider a problem. Consider a program for determining the previous dates. ठीक है, एक आपको 3 वेरिएबल आपको गिवन है, डेट में हमें पता है 3 वेरिएबल है, वी आर हैविंग मंथ, डे एंड ईयर। सपोज ये 3 वेरिएबल आपके पास इनपुट है, यानी हमने एक डेट इनपुट अगर दी, सपोज हमने कोई डेट दी 1 जनवरी 2020, तो हमने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है, दिस सॉफ्टवेयर विल टेस्ट वेदर इट इज अ वैलिड डेट और अनवैलिड डेट। इफ इट इज अ वैलिड डेट देन इट विल प्रिंट इट्स प्रीवियस डेट, तो इसकी जो प्रीवियस डेट है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, इसकी जो प्रीवियस डेट है उसको प्रिंट कर देगा। तो जैसे सपोज करो अगर ये होता 2 जनवरी 2020, तो इसकी प्रीवियस डेट क्या हो गई 1 जनवरी 2020, ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 जनवरी 2020 अगर है तो इसकी प्रीवियस डेट क्या हो गई 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो 2 काम करेगा ये सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इट विल चेक वेदर द गिवन इनपुट इज वैलिड, इफ इट विल बी वैलिड इट विल प्रिंट द प्रीवियस डेट, यानी अगर आज की हमने डेट डाली है तो ये यस्टरडे की डेट प्रिंट कर देगा। एंड इफ डेट इज नॉट वैलिड, इफ डेट इज इनवैलिड, ठीक है, जैसे मैंने दे दी सपोज करो 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी इज इनवैलिड डेट, राइट। या फिर मैंने जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में सपोज करो अप्रैल में मैंने दे दिया 31 अप्रैल, ठीक है, दैट कैन बी इनवैलिड डेट, राइट। So in this way we need to check whether the date is valid. If it is valid it will give the previous date, otherwise it will print it is a invalid date, ठीक है। अब इसको हमें सपोज करो टेस्ट करना है विद द हेल्प ऑफ बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड। तो जैसा कि आपको याद है कि हमने क्या किया, हमने 5 टेस्ट केस डिजाइन किए थे हर वेरिएबल के लिए। हियर द रेंज इज गिवन, यहाँ पे आपको हर वेरिएबल के लिए रेंज दी हुई है। क्या रेंज है, फॉर ईयर it can varies from 1900 to 2025, for day it is 1 to 31 and for month it is 1 to 12, ठीक है। इसी रेंज के अंदर आपको अपनी जो वैल्यूज है उसको लेना है। तो इंडिविजुअली अगर हम देखें, जैसे मंथ की अगर आपको रेंज लेनी है तो क्या हो गई, लोअर बाउंड 1 + 2, ठीक है, देन एनी मिड वैल्यू इट कैन बी 6, देन अपर बाउंड -1, ये 5 वैल्यू हो सकती हैं। ऐसी डे के लिए कौन सी वैल्यू हो सकती है, लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड 31 -1 एंड एनी मिड वैल्यू, ठीक है। ऐसी सिमिलरली फॉर ईयर। तो देखो इसी के बेसिस पे अब हमने डिजाइन किए हैं अपने ये टेस्ट केस।
सबसे पहले हमने कहा ईयर की रेंज थी 1900 टू 2025, ठीक है। तो रेंज क्या हो गई, लोअर बाउंड +1, अपर बाउंड -1 और एक मिड वैल्यू। इस समय हमने डे की ले ली, जो डे की मिड वैल्यू है, तो 1 टू 31 में मिड वैल्यू 15 ले ली। ऐसे ही मंथ की जो मिड वैल्यू है वो 6 हो गई 1 टू 12, ठीक है। तो ये हमने किसके लिए लिख लिया, ईयर के लिए। सिमिलरली फॉर डे, डे के लिए लिखेंगे एंड सिमिलरली फॉर मंथ। बस एक पॉइंट हमें याद रखना है, जो मिड वैल्यू है वो सबसे पहले टेस्ट केस में आती है, दोबारा रिपीट नहीं होती। जैसे आप देखो 6, 15 और 1962, ये मिड केस है, ये अब दोबारा रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप देखो हमने 5 ही केवल 4 ही वैल्यू ली हैं, 1, 2, 30 और 31, ठीक है। यहाँ पे हमने 15 नहीं लिया है, क्यों, क्योंकि ये वाला टेस्ट केस बन जाता थर्ड वाला। ऐसे ही आप देखो थर्ड वाले में भी 1, 2, 1, 2, 11 एंड 16 एंड 12, 6 नहीं लिया, क्यों, क्योंकि 6 लेने से थर्ड टेस्ट केस बन जाता है, ठीक है। तो अगर हमने सपोज करो सबसे पहला टेस्ट केस दिया इनपुट कि इफ मंथ इज 6, डे इज 15, ईयर इज 1900, ठीक है, क्या ये वैलिड डेट है, यस इट इज अ वैलिड डेट। तो प्रोग्राम क्या आउटपुट कर दे, इसका प्रीवियस डेट। तो 15/6/1900 की प्रीवियस डेट क्या हो गई, 14/6/1900 या 14 जून 1900, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टेस्ट केस डिजाइन कर लिए। अब जब आपको इसको एक्चुअल में इंप्लीमेंट करना है तो हम क्या करेंगे, टेस्ट केस इनपुट करेंगे सॉफ्टवेयर में, right? We will give this test case as input and then we will check whether we are getting the right output or not. अगर हमें ये इनपुट देने पे, ये पहले 3 इनपुट देने पे 14 जून 1900 आउटपुट मिल गया, तो हम कह सकते हैं टेस्ट केस इज पास। और नहीं मिला तो हम क्या कहेंगे, टेस्ट केस इज फेल, ठीक है। सो इन दिस वे इफ ऑल द टेस्ट केस विल पास देन वी कैन से द फंक्शनैलिटी ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज करेक्ट। If any one of the test case will fail, then we can say that there is some error, there is some bug present in the code, right? So this was the method of testing a particular software. तो ये एक तरीका भी है कैसे हम टेस्ट केस लिखते हैं, जनरल मेथड है, इसको आप हमेशा ध्यान रखना। लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स, जैसे यहाँ पे हमारे 3 इनपुट हैं, मंथ, डे और ईयर। ये एक भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, 4 भी हो सकते थे। और राइट साइड में क्या आ जाता है, एक्सपेक्टेड आउटपुट, कि क्या ये इनपुट देने से क्या हमें ये एक्सपेक्टेड आउटपुट मिला या नहीं मिला। अगर हमें ये इनपुट देने से एक्सपेक्टेड आउटपुट ये मिल गया, इसका मतलब हमारी सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी करेक्ट थी। अदरवाइज इसमें कुछ एरर है, वी नीड टू रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर, ठीक है। सो दैट वाज द स्ट्रेटजी ऑफ आइडेंटिफाइंग द error with the help of first method, that is known as boundary value analysis method, right? अब बात ये आई कि ये जो फर्स्ट मेथड था इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी, जैसे हम बियॉन्ड दी बाउंड्री टेस्ट नहीं कर पा रहे थे, बियॉन्ड दी बाउंड्री हम टेस्ट नहीं कर पा रहे थे। जैसे सपोज करो आपकी जो रेंज है 1 टू 12, अब यूजर ने मान लो बाई चांस मंथ में डाल दिया 0, या सपोज करो उसने बाई चांस डाल दिया 13, या डे में उसने डाल दिया 32, then how the system will behave on wrong inputs or the input that is not lies within the range, ठीक है। रेंज के बाहर अगर हमने कुछ इनपुट दिया है तब हमारा सिस्टम किस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। इस चीज को हमें एनालाइज करना है। तो ये चीज अभी तक हम इस बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड में नहीं कर पा रहे थे। So that's why we have switched to a second method, and that method is known as robustness testing method. Robustness testing method, ठीक है, नाम से क्लियर है, हाउ मच सिस्टम इज रोबस्ट फॉर एक्सेप्टिंग रॉन्ग इनपुट्स। अगर हमने गलत इनपुट दिया, अगर हमारी जो इनपुट है वो रेंज के बियॉन्ड है, रेंज है हमारी 1 टू 100 और हमने दे दिया इनपुट 101, 102, then how the system is behaving on wrong inputs or the input that is beyond the range. So that is known as robustness testing, how much system is robust for accepting wrong inputs. तो बहुत सिंपल है, इसके लिए हमने सिंपल क्या किया है, 2 टेस्ट केस और बढ़ा दिए हैं। हाँ, एक पॉइंट और याद रखना, ये जो हमारा मेथड था बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस मेथड, इसमें जो टोटल टेस्ट केस हमेशा बनेंगे वो कितने बनेंगे, 4n+1, वेयर n इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे कितने वेरिएबल थे, 3, ठीक है। तो टोटल जो टेस्ट केस बने वो कितने बने, टोटल 13, राइट। अब जो आपका नया रोबस्टनेस मेथड है उसमें जो टेस्ट केस बनेंगे वो कितने होंगे, 6n+1, ठीक है, 6n+1। क्यों, आपने अब 2 टेस्ट केस हर के लिए बढ़ा दिए। क्यों बढ़ा दिए, क्योंकि हमें अब चेक करना था
कि बियॉन्ड द बाउंड्री सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। तो देखो इसी को अगर मुझे रोबस्टनेस के हिसाब से डिजाइन करना है तो क्या करूं मैं, रेंज थी 1900 टू 2025, इसी में ही अब क्या कर दो, एक लोअर बाउंड -1 वो और ऐड कर दो, यानी एक टेस्ट केस में यहाँ पे और ऐड कर दूं 1899। ठीक है, एक रेंज के बाहर सपोज करो मैंने ऐड कर दिया 2026। ठीक है, ऐसे ही मुझे डे के लिए मैंने जो लिखे थे टेस्ट केस इसमें मैं ऐड कर दूं 1 की जगह मैं यहाँ पे और एक लिख सकता हूँ -1 या 0 पे मैंने टेस्ट कर लिया। ठीक है, ऐसे ही 31 के बाद में एक और ऐड कर दिया 32, सिमिलरली फॉर मंथ। ठीक है, तो दो दो टेस्ट केस मैंने सब में और ऐड कर दिए, और रोबस्टनेस के हिसाब से अगर मैं डिजाइन करूंगा तो रोबस्टनेस के हिसाब से ये टेस्ट केस फॉर ईयर दो इंक्रीज कर दिए 1899 2026, फॉर डे फिर से दो इंक्रीज हो गए 0 और 32, एंड फॉर मंथ 0 एंड 13। ठीक है, अब हमें ये टेस्ट करना है इसमें कि जब हमने इनपुट बियॉन्ड द रेंज दिया, जैसे हमने दे दिया 615 1899, द इनपुट इज बियॉन्ड द रेंज, तब हमारे सिस्टम ने हमें क्या आउटपुट दिया। ठीक है, हाउ मच द सिस्टम इज रोबस्ट फॉर एक्सेप्टिंग रॉन्ग इनपुट्स। ठीक है, तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, इनवैलिडेट या फिर आउटसाइड द रेंज, क्योंकि ये हमारी रेंज के बाहर है। तो अगर हमारा सॉफ्टवेयर इस तरीके से हमें आउटपुट दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी करेक्ट है। अब इस मेथड से एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई कि हमने रेंज के बियॉन्ड सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर लिया, बट अभी भी आप देखो हर तरीके का टेस्ट केस यहाँ पे हमारा नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जैसे हमें 28 फरवरी हमारा नहीं बना इसमें एक टेस्ट केस, 20 फरवरी या 29 फरवरी। ठीक है, ऐसे ही जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में 31 अप्रैल। ठीक है, वो वाला टेस्ट केस नहीं बना, ऐसे बहुत सारे टेस्ट केस में अभी नहीं बन पाए। तो हमने कहा कि अच्छा हम ऐसा करते हैं, टेस्ट केस बढ़ा देते हैं। तो हमने एक और नया मेथड बनाया, दैट इज नोन एज फर्स्ट केस टेस्ट। टेस्ट केस हमने कहा हम और बढ़ा देते हैं क्योंकि सारे टेस्ट केस नहीं बन पाए थे। इन दिस टेस्टिंग मेथड द फॉर्मूला इज 5 टू पावर n, फॉर्मूला इज 5 टू पावर n, कि अब हमने जो टेस्ट केस बना दिए वो 5 की पावर n बना दिए, यानी इफ वी आर हैविंग टू वेरिएबल्स देन वी कैन फॉर्म 25 टेस्ट केसेस। ठीक है, 25 टेस्ट केस हम बनाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कंडीशंस इंपोज हो सके और हम सॉफ्टवेयर को हर पॉसिबल कंडीशन पे टेस्ट कर सकें। तो बस्ट केस में तरीका क्या है कि इफ सपोज वी आर हैविंग टू वेरिएबल x एंड y एंड द रेंज लाइज फ्रॉम 100 टू 300, 100 टू 300, तो आप क्या करो, इसकी हर वैल्यू का इसकी हर वैल्यू से पेयर बना दो बस। तो पहली वैल्यू क्या है 100, तो इसका 100 से एक पेयर बना दिया। दूसरी वैल्यू क्या है 101, तो देखो इसकी सेम वैल्यू का 101 से एक पेयर बन गया। थर्ड इट इज 200, तो देखो सेम वैल्यू का 200 से पेयर बन गया। थर्ड इज 299, ठीक है, एंड 300, यानी हर वैल्यू का हर वैल्यू से पेयर बना दिया, तो टोटल देयर विल बी 5 टू पावर n टेस्ट केसेस। तो अब अगर तीन वेरिएबल है तो कितने हो जाएंगे 125 टेस्ट केसेस। तो देखो उसी मेथड से हमने इसको किया। तो इन दिस वे वी कैन फॉर्म these different 125 टेस्ट केसेस। ठीक है, लेकिन इतना करने के बावजूद अभी भी हर तरीके का टेस्ट केस हमारा फॉर्म नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, we will switch to a new method that is known as equivalence class testing method. So in next lecture we will discuss what is equivalence class testing method. So I have used these different references. Thank you everyone.